Hope the screen is visible to all of you. Someone please reply. ऐसा मत दो, अभी मुझे वापस जाके देखना पड़ेगा आप लोगों ने क्या लिखी है. चलो ठीक है. यस मैसेजेस आ रहे हैं. ओके. So actually, last to last year only, I have prepared all the slide. Okay, and as I told you that these are not just a slide; these are the notes also, because I've collected this data from various places. Literally up till up to the chapter number 3, the material was available in the single book. Okay, जो मैंने book बताया था आप लोग को, in that book only all the things were available. But from chapter number 4 onwards, okay, the things are not, the chapters and the materials are not available in a single book. Okay, so I've collected these material from various books. Okay, so these are not just the slide. Okay, slides ऐसी नहीं होती है, स्लाइड में जस्ट पॉइंट होते हैं, लेकिन यू कैन सी मैंने काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े इसके अंदर स्टेटमेंट भी लिखा हूँ. ठीक है, सो दैट इट कैन एक्ट एज अ नोट्स ऑल्सो फॉर यू पीपल फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली, एंड फॉर ऑल द चैप्टर्स, फॉर ऑल द सब्जेक्ट, my slides are in this pattern only. Okay, so that you can use it for the reference also, you can use it for the notes purpose also. Okay, so it will act as a notes also. Okay, so this is the first slide in which the syllabus is mentioned. As you can see, we have already discussed about the syllabus, the content of the chapter, that is wireless LAN, wireless local area network. Okay, so now everyone is clear about this. कि ये हमारा फोर्थ चैप्टर है. ओके, और इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज वायरलेस लैन. ओके, इन ये चैप्टर के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारे वायरलेस लैन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया है, जैसे जैसे कि हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे. जैसे कि आपका एडहॉक आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, आपका हाइपर लैन 1 आ जाएगा, हाइपर लैन 2 आ जाएगा. फिर वायरलेस लैन में आपका फिर आपके जो डब्ल्यू पी है, डब्ल्यू ई पी है. सो ऑल दीज आर दी वायरलेस लैन टेक्नोलॉजीज. ओके, सो दीज डिफरेंट वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने क्या किया, इसमें डिस्कस किया है. The global goal of wireless LAN is to replace office cabling to enable tetherless access to the internet and to introduce a higher flexibility. These are the statement. Where the wireless network, the wireless LAN concept was a very big one. Okay, and we were not having the these technologies at that time. हम लोग बोलते हैं ना अभी, अभी हर कोई चीज़ जो है तो आईपी एनेबल्ड हो जाएंगी. इवन दो द थिंग्स आर गेटिंग चेंज इनटू द आईपी, आईपी एनेबल्ड हो रही है, बट स्टिल द थिंग्स आर इन मोमेंट, और अभी मतलब सारी चीज़ें हुई नहीं है. तो एक वक्त में आएगा, मतलब एक वक्त ऐसा आएगा, ऐसे 5-10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में, कुछ ऐसा वक्त एक आ सकता है कि जहाँ पर मतलब सारी चीज़ें आपकी आईपी एनेबल्ड होगी. एवरीथिंग, छोटे से छोटी चीज़ भी आईपी एनेबल्ड होगी. You can control all these gadgets. Okay, all these appliances from your mobile phones itself, from your remote or whatever your control you are having. Okay, maybe cyborg concept can be integrated with this existing one. Okay, so the everything which is connected to your mind now. Okay, with the help of cyborg concept, everything can be connected with your mind. When you think of it, okay, I want to close my oven, okay, I want to switch off my oven now, so you can just think of it. Okay, and it will be done. Okay, the things can be done like that also. So when that era will come, so उस वक्त में हम लोग सोचेंगे कि यार एक टाइम पे ऐसा था कि ये चीज़ें नहीं थी, खाली बस हम लोग के पास में वाईफाई राउटर्स हुआ करते थे. वी यूज टू एक्सेस इंटरनेट वाया आर वाईफाई राउटर्स. ओके, और हमारे घर पे केबलिंग होती थी, और लैन के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट यूज़ करते थे. हम लोग उस टाइम पे मतलब ट्रैवल जो करते थे वो अपनी बाइक से करते थे. ऐसा आप लोग ऐसा आके हमारी आगे वाली आने वाली जनरेशन सोचेंगी कि हम लोग बाइक से ट्रैवल करते थे, कार से ट्रैवल करते थे. नाउ वी आर हैविंग एयर बस, एयर कार. ओके, तो और यहाँ पर हमारे पास में 100 फ्लोर की 100 स्टोरी बिल्डिंग है, 200 स्टोरी बिल्डिंग है. उस टाइम पे तो खाली बस ज़्यादा नहीं, मतलब एक बहुत कम बिल्डिंग हुआ करती थी. यानी ऐसा आप लोग आगे चल के सोचेंगे, हम लोग नहीं सोचेंगे, हमारी जनरेशन सोचेंगे कि ऐसा भी हुआ रहेगा, या ऐसा भी टाइम था जब वाईफाई नहीं था, जब वायरलेस कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वी वर हैविंग ओनली वाइड कनेक्शन. सो वाइड कनेक्शन और बोलते हैं यार,
जब भी इंटरनेट यूज करना है, आपको कहीं बैठना है, यू हैव टू फिक्स योर सेल्फ, you have to fix yourself and then you have to sit at one place and then you have to use the internet, okay, but now at every places अब हम लोग कहीं भी घूम फिर के भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। तो जब चीजें आगे इम्प्रूव हो जाती है तो फिर हम लोग सोचते हैं कि उस टाइम पे ऐसा हुआ रहेगा, ऐसा हुआ रहेगा ना, ऑल दैट, ठीक है। सो ये जो बुक है, ये जो कंटेंट है, ये आज से कई साल पहले का लिखा हुआ है, जिसमें लोग ने ये बताया था कि एक वायरलेस एनवायरनमेंट होना, ये मतलब हो जाएगा, और विल बी हैविंग हायर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द एडॉक कम्युनिकेशन, एवरीवन कैन द कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। देखो हम अभी ऑफिस में एंटर हुए, माय मोबाइल एंड माय लैपटॉप विल गेट कनेक्टेड टू द वाईफाई राउटर, ओके, एंड आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट डायरेक्टली, ठीक है, या फिर आई हैव स्टार्टेड ऑलरेडी वर्किंग, ठीक है। तो मतलब मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ और दूसरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो द थिंग्स आर इन इन दैट मोमेंट राइट नाउ। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आज से कई साल पहले सोची जाती थी कि ऐसा होगा, हर कोई वायरलेस लैन के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, और all the laptops and your the desktop will be connected with your Wi-Fi routers also, है ना। तो ये सारी चीज़ें पहले सोची जाती थी, लेकिन बाद में फिर ये सब ऐसे एनवायरनमेंट आ गया कि नाउ दीज थिंग्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग आगे के बारे में भी सोचते हैं कि भाई सब कुछ अभी आईपी एनेबल्ड हो जाएगा, सारे गैजेट, सारे अप्लायंसेस, सारी चीज़ें, आपकी कार, एवरीथिंग आपकी हो जाएंगी। तो उस टाइम पे हम लोग अभी सोच रहे हैं, लेकिन वो ज़माना जब आ जाएगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें एक्चुअल में रहेंगी। तो ये एक है। So we have some advantages of wireless LAN, okay? So first is the flexibility. पहले मैं मतलब एनालिस्ट कर देता हूँ कि what are the different advantages of wireless LAN. Having wireless LAN, the first is flexibility, planning, design, robustness, cost, okay? यहाँ तक उसके advantages में काउंट करते हैं हम लोग। Then उसके disadvantages के अंदर फिर quality of service, okay? Then proprietary solutions, restrictions, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यहाँ तक है, ओके। तो पहला एडवांटेजेस, सेकंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लैन, देन डिज़ाइन गोल्स, ग्लोबल ऑपरेशन, लो पावर, ये सब वाइवा क्वेश्चंस भी है और एग्जाम में क्वेश्चन आते भी है कभी कभार। License free operation, robust transmission technology, simplified spontaneous cooperation, protection of investment, safety and security, transparency for application. यहाँ तक है ना, you have three different topics till till infrastructure and ad hoc network, advantages, disadvantages, and design goals of wireless LAN. तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, पहले एडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं। वी जस्ट हैव टू डिस्कस अबाउट इट कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। कुछ 4-5 एडवांटेजेस हो सकते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, विल डिस्कस वन बाय वन। First is the flexibility. Obviously, flexibility क्यों रहेंगी? Because now you are free to move anywhere in the location. You are free to move anywhere in the area. Okay, because you are not bounded now. You have to stay at one place. You have to stick at one place, and you are fixed now. This is not like that. Okay, in the wireless LAN environment, you can move anywhere. So flexibility within the radio coverage. See, it has already mentioned that within the radio coverage, जहाँ तक range पहुँच सकती है, nodes can communicate without further restriction. Okay, that's a very damn simple statement, you can understand. Radio waves can penetrate walls, senders and receiver can be placed anywhere. ठीक है, आप बैठो, आप बिल्डिंग में बैठो, आप कार में बैठो, आप मूव करो, but in the radio coverage area only. So you are having flexibility that you can move anywhere in the radio coverage range. Okay, that's the very first advantage of having wireless LAN. Okay, then second is planning. Only wireless ad hoc network allow for communication without previous planning. आपके एडॉक नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ मतलब के डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एडॉक नेटवर्क, ये मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन आपस में आए, आपस में आए, कनेक्ट हुए, और कम्युनिकेट किया, चले गए, ठीक है। विदाउट प्लानिंग, आप क्या कर सकते हो? एडॉक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर सकते हो। any wired network needs wiring plans, okay। so for example, आपके 3 मोबाइल फ़ोन हैं, ठीक है। सो 3 मोबाइल फ़ोन आते हैं या 2 मोबाइल फ़ोन आते हैं, दोनों आपस में कम्युनिकेट किए, कुछ प्लानिंग रिक्वायर्ड है, कुछ सेटअप रिक्वायर्ड है? नो। इसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, इसने अपना ब्लूटूथ ऑन किया, कम्युनिकेट किए, डेटा ट्रांसफ़र किए, भाग गए, ओके। बट सेम केस अगर आपके
इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में अगर करेंगे या फिर वाइड नेटवर्क में अगर हम लोग करेंगे, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी नीड टू प्लान। ओके, यहाँ पर आपको एक आपको डिवाइस लगेगा दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, सॉरी दो एंड डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक नेटवर्क रिक्वायर्ड है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको एक डिवाइस लगेगा, कुछ केबलिंग लगेंगे एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आपको सेटअप रिक्वायर्ड है, प्लानिंग रिक्वायर्ड है। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन द यू नो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में रिक्वायर्ड है, बट इन एडहॉक नेटवर्क प्लानिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, for wide network, additional cabling with the right plugs and probably internet working units have to be provided. प्रॉपर जगह से नेटवर्क कनेक्शन लेना, फिर दोनों को आपको केबलिंग रिक्वायर्ड है, दोनों कितने डिस्टेंस पे उतना केबल रिक्वायर्ड, एंड इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज टू डिवाइसेस यू नीड वन नेटवर्किंग डिवाइस ऑल्सो। सो इतनी प्लानिंग, इतना सेटअप इज रिक्वायर्ड इन द इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग, आपका जो एडहॉक नेटवर्क है बोलता है भाई हमको कुछ प्लानिंग रिक्वायर्ड नहीं है, we can come, we can just communicate, authenticate, communicate and go. Okay, so this is one of the advantage we can count in the wireless LAN. Coming to the third point. Okay, these points are very simple, just by reading the statement you can easily understand. Okay, so that's why I'm going in a very fast mode. Okay, design is one of the advantages of the wireless LAN, where wireless network allows for the design of small independent devices which can, for example, be put into the pockets. क्या है ये आपके हाथ में, मोबाइल फोन, can communicate with the network, can communicate with other devices also, can communicate within the radio coverage. Okay, and you can put it in your pocket. समझ में आया? तो डिजाइन इज वेरी स्मॉल। ओके, बट वही चीज आप अगर अगर कभी आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, अगर आपके पास में डेस्कटॉप कंप्यूटर है, क्या करोगे, जेब में रख सकते हैं आप इसको? इवन दो यू पीपल्स आर हैविंग, उस टाइम पे हमारे पास में छोटे लैपटॉप वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पे हमारे पास में डेस्कटॉप कंप्यूटर थे, समझ लो। ठीक है, तो उतने बड़े डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप रख नहीं सकते थे, बट यू पीपल्स आर हैविंग छोटे छोटे डिवाइसेस जो कि आपके एडहॉक नेटवर्किंग पे काम करते हैं, जो कि एडहॉक नेटवर्किंग का पार्ट है। So we have very short, we have very small, design independent devices, okay, which can be carried from one location to another location. Cables not only restrict user but also designer of the small PDAs notepad. आपका डेस्कटॉप है घर में, कनेक्टेड है, वाइड केबल से कनेक्टेड है, आप कहीं लेके जा सकते हो उसको? कहीं पर नहीं लेके जा सकते, यू हैव टू स्टिक एट दैट प्लेस ओनली। बट इफ यू आर हैविंग मोबाइल फोन or any other digital device, any gadget, okay, then you can carry from one location to another location. Wireless senders and receivers can be hidden in the storage buildings. Okay, चलो छोड़ो, तो डिजाइन भाई हमारे छोटी है। ओके, so in the ad hoc network we our gadgets can communicate very easily, we can carry from one location to another location. Okay, this is the third advantage we can have as a part of design. रोबस्टनेस, एडवांटेज के अंदर रोबस्टनेस भी डाला है भाई, रोबस्टनेस तो उसमें आना चाहिए, तो देखते हैं फिर भी। तो वायरलेस नेटवर्क कैन सर्वाइव डिसास्टर, अर्थक्वेक्स एंड अदर पुलिंग अप प्लग। लैपटॉप आपका या आपका डेस्कटॉप, किसी ने लैन केबल खींच लिया, क्या हो जाएगा बोलो? अचानक अर्थक्वेक आ गया, आपका डेस्कटॉप गिर गया, आपका केबल टूट गया, आपका डिवाइस, आपका जो मेन लाइन जो आ रही थी फाइबर ऑप्टिक की वो टूट गई। ओके, और कुछ डिसास्टर आ गया, फ्लड आ गया, खराब हो गया। वही 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 केस में अगर हमारे पास में अगर वायरलेस होता, तो वायरलेस चलो कैरी करो, फटाफट यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, आप किसी और जगह जाओ, वहाँ पर नेटवर्क है, आप उससे कनेक्ट हो जाओ और बात कर लो, कम्युनिकेट कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ठीक है, so in this term your wireless LAN is robust. If the wireless devices survive, people can still communicate. Okay, and networks requiring a wide infrastructure will usually break down completely. पूरी की पूरी बिल्डिंग नेटवर्क में थी, यानी कि केबलिंग में थी, अर्थक्वेक आया, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स या पूरी बिल्डिंग का नेटवर्क डाउन, और वहाँ मेन लाइन डाउन, पूरा बिल्डिंग का नेटवर्क डाउन, सबके सब डाउन, सबके सब। ठीक है, so in this term you can think of the wireless network that it has the robustness also. ठीक है, I hope you will understand this point, you understood this point. Okay, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। Now coming to the next one, the next advantage, that is cost. यहाँ से disadvantage शुरू हो रहे हैं। Flexibility, planning, design, robustness, cost.
ठीक है, तो 5 एडवांटेजेस है, याद में रखना। आप लोग इसको खुद से लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको ऐसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे ही आप लोग खुद से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इसको लिखने में भी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। Coming to the last advantage of wireless LAN, having wireless LAN, that is in terms of cost. After providing wireless access to the infrastructure via access point for the first user, adding additional user to a wireless network will not increase the cost. जैसे आपको पता है कि अगर आपका वायर्ड नेटवर्क है, इफ यू आर हैविंग वायर्ड नेटवर्क, जैसे आपका आपका एक लेक्चर हॉल है, आपकी लैब है, आपकी क्लासरूम है, ठीक है, आपको अगर आप सबके पास में 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम एंड यू वांट टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम वाया वाइड नेटवर्क, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आप 60 हो, उसके लिए आपको 48 पोर्ट के दो स्विचेस लगेंगे, या फिर एक काम करें 32 के आपको दो स्विचेस लगेंगे। पहले तो आपको मेन लाइन लाना पड़ेगी, मेन लाइन से आपको दो कनेक्शन लेके दो स्विचेस में लगाना पड़ेंगे, देन दो स्विचेस से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे को वायर्ड नेटवर्क के थ्रू एक एक फिर आपको लैंड वायर देना पड़ेगा, जो कि वहाँ से कनेक्ट होके आए, और फिर आपको वो उन 32 आपके 32 पोर्ट के जो स्विचेस है दो, उनमें सबको कनेक्ट करना पड़ेगा। यह आपकी बात हुई आपके वायर्ड नेटवर्क की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क की। ठीक है, और वही बात करें अगर हम आपके वायरलेस नेटवर्क की, तो यहाँ पे तो इतना खर्चा आया, कितना खर्चा आया, दो लाइन लिया आपने, दो आपको 32 पोर्ट के स्विचेस लगे, एक आपका स्विच कितने का आएगा? एनीवन? द कॉस्ट फॉर एनी द कॉस्ट फॉर क्लियर टू स्विच, एनीवन? अरे बोलो जल्दी, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं बाबा। काजिम? नो आइडिया, एनीवन? मैंने भी कभी परचेज नहीं किया, लेकिन ऐसी ऑन एन एवरेज अगर कंसिडर करते हैं तो कुछ नहीं तो भी आराम से 10 to 15,000 तक आना चाहिए मेरे हिसाब से 32 पोर्ट का, या फिर उससे कम ही रहेगा, बिकॉज आजकल कंपटीशन बहुत है मार्केट में, तो थोड़ा सा कम भी हो गया। तो एक चलो एक 10 to 15,000 के रेंज में आप पकड़ के भी चलते हो, तो आपको अराउंड 25,000 का एक पकड़ के चलो, सो 25,000 यू रिक्वायर्ड फॉर स्विचेस, दो अच्छे आपने लेयर टू लेयर थ्री जो भी स्विच वो आपने लगा दिए, और उसके बाद में फिर सबके लिए आपको केबलिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो केबल्स आपने मार्केट से लेकर आगे परचेज किए, तो केबल्स भी आपको रोल लाना पड़ेगा, बिकॉज 60 कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, you are going to provide the network connection to all the students in a classroom via infrastructure network। ठीक है, सबको वाइड कनेक्शन देने का, तो आपको इतना सारा कॉस्ट लगेगा। एक अच्छा बड़ा रोल लाएंगे आप लोग, ठीक है, वायर का कैट 5 कैट 6 केबल जो भी आपको लगेगा वो आपको चाहिए रहेगा, तो वो लाके आपको क्रिम्पिंग केबल्स लाना पड़ेंगे, फिर आपको किसी लैब असिस्टेंट को हायर करना पड़ेगा, वो आके सबकी क्रिम्पिंग करके प्रॉपरली सबकी टेस्टिंग करेगा, क्रिम्पिंग टूल से क्रिम करके उसमें आपका जो RJ45 कनेक्टर है वो कनेक्ट करेगा और सबकी टेस्टिंग करेगा, सारे केबल्स की टेस्टिंग करेगा, फिर सबको स्विचेस में लगाएगा, फिर सब अपने अपने लैपटॉप में लगाएंगे, और लगाने के बाद में फिर आपका सबको सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप करके सबको फिर मिलेगा। ठीक है, इतना सारा मिलेगा। और वहीं अगर सबके पास में लैपटॉप्स है, अगर सबके पास में लैपटॉप्स है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो या चलो लैपटॉप पकड़ ले, बिकॉज़ वो केस में हम लोगों ने लैपटॉप पकड़े हैं। तो अगर सबके पास में लैपटॉप है तो हम लोग क्या करो, सिंपल एक लाइन खींच कर लेकर आओ और एक वाईफ़ाई राउटर लगा दो, उसको ओपन कर दो, या उसका आपको अगर पासवर्ड रखना तो पासवर्ड रखो, नॉट एन इश्यू। तो एक वाईफ़ाई राउटर लगा दो, सबको बोलो ये इसका आईडी है, ये पासवर्ड है, एक्सेस करो। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट योर वायरलेस लैन इज़ वेरी वेरी चीप। ठीक है, अब मैं आपको इतना सारा जो मैंने सेटअप करके बताया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क के लिए, मतलब फिक्स नेटवर्क के लिए, सो इट रिक्वायर्ड सम कॉस्ट, ओके, बट कंपैरिजन विद द wireless LAN you required very very less cost। Okay, so I hope you understood what I want to say। Lecture hall, hotel lobbies, gate areas in airport where the numbers using the network may vary significantly, तो उसके हिसाब से वो वेरी होता रहता है, बट वी वर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द सिंगल रूम सिंगल हम लोग का वहाँ का कंसिडर कर रहे थे, तो उसके हिसाब से। ठीक है,
तो आई होप आप ये वाला एडवांटेज भी समझे होंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, कितना वहाँ कितना लग रहा है, यहाँ कितना लग रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं उसके डिसएडवांटेजेस पे। हमको डिसएडवांटेजेस भी कवर करना है, एंड आफ्टर दैट हमको डिजाइन रूल भी पढ़ना है, ठीक है। इतना इतना सब कुछ हम लोग को आज ही करना है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक कैन बी कवर टुमारो। ओके, सो वी हैव सम some disadvantages also. क्वालिटी ऑफ सर्विस। अब देखो, अब लैब असिस्टेंट को कभी पूछोगे ना, अपनी 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 कॉलेज के लैब असिस्टेंट को जाके अगर आप पूछोगे कि वाइड नेटवर्क अच्छा है या वायरलेस नेटवर्क अच्छा है, वो बोलेंगे अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कुछ डाउनलोड करना है, कुछ अपडेट लेनी है विदाउट डिसरप्शन अगर आपको कभी इंटरनेट सर्विस यूज करना है, तो आप वाइड नेटवर्क पे जाओ, ठीक है। बिकॉज वहाँ पर हमको जो क्वालिटी मिलती है ना, तो दैट इज ऑसम, ठीक है। वहाँ पर क्वालिटी हमको अच्छी मिलती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो रहती है वो अच्छी होती है। और इन दैट रिगार्ड्स अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट काम है, फॉर एग्जांपल यू आर अपडेटिंग समथिंग, ओके, और जहाँ पर आपको डिसरप्शन नहीं चाहिए, आपको इंटरप्शन नहीं चाहिए, सॉरी मैं डिसरप्शन आई थिंक डिसरप्शन भी यूज करते हैं, तो इंटरप्शन अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर दैट केस यू कैन गो फॉर दी वाइड नेटवर्क, जो कि क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने में आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कंटिन्यूस सर्विस चाहिए तो गो फॉर दी वाइड नेटवर्क, ठीक। So in terms of quality of service, wireless LAN typically offers low quality of than the wired counterpart, ठीक है, written. Main reason for this are the lower bandwidth due to the limitation in radio transmission. रेडियो, बिकॉज एवरीथिंग जो भी है आपका रेडियो ट्रांसमिशन के थ्रू ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, सारे एरिया में। अब उसके 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 कंपैरिजन में हमारे पास जो सर्विस मिलेंगी वो वाइड नेटवर्क में विल गेट अ गुड सर्विस। So the very first one, that is quality of service, no doubt. Proprietary solution, थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो आपका डिसएडवांटेजेस के अंदर दिस इज इट कम्स सेकंड, दैट इज proprietary solution. Due to slow standardization procedure, many companies have come up with the proprietary solution offering standardized functionality plus many enhanced features, and these additional features only work in the homogeneous environment when adapters from the same vendors are used for the wireless node. ये मैंने क्या लिखा हूँ, proprietary solution, मुझे खुद याद नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं आपको उसको बाद में बताऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने लिखा था इसको और इसका मुझे याद भी था लास्ट टाइम। अच्छा, लास्ट टाइम की वीडियो में अगर देखेंगे तो इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिल भी जाएगी। बहरहाल सेकंड इसका डिसएडवांटेज है कुछ तो प्रॉपराइटी सोल्यूशन। प्रॉपराइटी तो आप लोग समझते हैं कि जहाँ पर चीज़ पर्सनल होती है या फिर समथिंग विच इज़ नॉट फॉर द पब्लिक, तो वो आपका प्रॉपराइटी होते हैं कुछ। रेस्ट्रिक्शन, ऑल वायरलेस प्रोडक्ट्स हैव टू कंप्लाई विद नेशनल रेगुलेशन, ठीक है, आपको ये चीज़ पता है, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप अगर कभी कोई वायरलेस अगर कुछ पब्लिक अगर कोई वायरलेस कुछ चीज़ अगर आप पब्लिक कर रहे हैं, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेशनल रेगुलेशन, वॉट एवर क्लॉज, वॉट एवर rules and regulation the government has set for doing the same, we have to follow that also, ठीक है। So several government and non-government institutions worldwide regulate the operation and restrict frequencies to minimize the interference, because if it is public then it may disturb any other service also, okay। So you have to be in your range, you have to be in your area, you have to be in your radio coverage, and then you have to provide the services to your tenants, then only you have to provide the services to your users, okay। तो आपको अपनी लाइन में अपनी एकदम एरिया में रह के आपको काम करना है, रूल्स के साथ में काम करना है, सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिकॉज आपकी जो वायरलेस सर्विस होती है वो आप उसको कहीं कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे आर इन द एयर, द रेज आर, जो भी आपकी जो सर्विसेज है, आपकी जो बैंडविथ है, आपके जो फ्लोज है, तो दैट इज इन द एयर, ओके। यू कैनॉट कंट्रोल, यू कैनॉट कैच इट कि भाई आपको तो ये लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना है, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो द रेस कैन गो, द फ्लो कैन गो एनीवेयर इन द एरिया, जितनी भी रेंज है उसके हिसाब से आपको उसको कंट्रोल करना होगा, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप लोग वाइड में देखेंगे तो वाइड में द थिंग्स कैन बी इजीली कंट्रोल, बिकॉज यू आर हैविंग वाइड कनेक्शन, ओके। जहाँ पे कनेक्शन चाहिए वहाँ पे कनेक्शन लेकर जाओ और उनको बोलो इसके थ्रू कनेक्ट हो जाओ, तो थिंग्स कैन बी वेरी वेरी इन अ वेरी वेरी रेस्ट्रिक्शन मोड।
लेकिन वायरलेस के अंदर थोड़ा सा हम लोग को रेस्ट्रिक्शन करना पड़ता है, बिकॉज अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। Wireless LAN are limited to low power centers and certain license free frequency band which are not in the same which are not the same worldwide। बहरहाल आपको क्या करना है, ऐसे कुछ लो फ्रिक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं बैंड यूज करना है, सो दैट आपके जो आपकी जो सिग्नल्स है दैट विल बी इन द रेंज ओनली, ठीक है, एंड योर सिग्नल्स विल नॉट गो आउट ऑफ द रेंज। तो आपको उसको रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ वन वी कैन से डिसएडवांटेज दैट यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योर वायरलेस कनेक्शन, यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट योर वायरलेस सिग्नल, बट यू कैन रेस्ट्रिक्ट योर वायर्ड सिग्नल को तो आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वायरलेस सिग्नल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट इज दैट कम्स अंडर द डिसएडवांटेज पार्ट। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब भाई आपको पता होगा कि जहाँ पर बात वायरलेस की आती है और हमारी रेंज, हमारी जो सिग्नल्स है, हमारे वेव्स है, तो इट कैन कॉज सम यू नो जिसको हम लोग बोलते हैं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये उसकी वजह से मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम इन द सेंस कैसे, ये जो बोलते हैं ना कि अभी फॉर एग्जांपल हमारे पास मोबाइल फोन, सो कीप योर मोबाइल फोन्स अवे व्हाइल यू आर स्लीपिंग। ओके, व्हाई वी से दिस, बिकॉज जब भी कॉल्स हमको आते हैं तो कॉल्स के वक्त में ऐसी कुछ रेंज होती है, ऐसी कुछ वेव्स होती है जो कि आपको प्रॉब्लम करेंगी, आपकी बॉडी को इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को दूर रख के सोना है। इवन अगर कभी आप यूज़ में नहीं कर रहे हो तो उसको दूर रखो, ठीक है। सो दैट इफ एनी दिस काइंड ऑफ waves are coming, then you will be protected from those waves, okay। तो ऐसे इसको बोलते हैं। इसीलिए उसकी एक पैरामीटर भी होता है, क्या होता है, मैं अभी जस्ट मेरे दिमाग से निकल गया, एनीवन कैन रिमाइंड मी, वैल्यू होती है, हर मोबाइल की एक डैश 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 वैल्यू होती है। एनीवन हैज एनी आइडिया अबाउट इट? सार वैल्यू, सार वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ कुछ मोबाइल की सार वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ओके। आई थिंक बीच में एक रेडमी 2 प्राइम, हाँ रेडमी 2 प्राइम बीच में स्टार्टिंग में फ़ोन आया था, उस टाइम पे मुझे पता चला था उसकी सार वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो जिस फ़ोन की सार वैल्यू सबसे कम होती है या सबसे मतलब कम से कम होती है, वो आप उसको चूज़ करना चाहिए। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कंसिडर दिस पर्टिकुलर सार वैल्यू वाइल द परचेजिंग ऑफ फ़ोन, बट बहुत हम में से काफ़ी लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, ठीक है, सार वैल्यू के बारे में नहीं। जस्ट गो टू द गूगल एंड जस्ट आस्क व्हाट इज सार वैल्यू एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर बॉडी, हाउ इट अफेक्ट्स योर हेल्थ, ठीक है। तो सर्च करना, कभी आप में से काफ़ी लोगों ने सर्च किया भी होगा, तो फिर भी किसी का कुछ, या *#07# से आप लोग पता कर सकते हैं। चलो अभी पता करते हैं, *#07#, यस, सार वैल्यू दिखाएगा नहीं, देखो हाँ, ये सार वैल्यू लिख के आ रहा है। बहरहाल वो अब मेरा पीछे बैकग्राउंड सेट है। द सार लिमिट फॉर मोबाइल डिवाइसेस इज 1.6 वॉट पर केजी। इसकी कितनी है? 0.383 वॉट पर केजी। तो मेरी कम है, कुछ कुछ लोगों की ज़्यादा होती है। मैं एक बार बताया ना आपको मेरा केस, मेरे पास में रेडमी 2 प्राइम, एक बहुत पुराना फ़ोन था रेडमी का, आई थिंक आज से 2 3 4 साल पहले की बात है। उसका सार वैल्यू 1 के ऊपर था, ठीक है। तो बहुत ही मुझे जिससे लिया था उसने बोला था भाई इसकी सार वैल्यू एक बार चेक कर लो। तो ऐसा होता है, आप लोग 0.48 वॉट के पर केजी, आपकी 0.4, मेरी 0.3 है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमारी हेल्थ को, हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। तो वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है। वी विल जस्ट रीड इट दिस पॉइंट, ओके। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहाँ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी यूजफुल है, टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल है, वहाँ पर हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं ये डेंजरस भी है, ठीक है। So using radio waves for data transmission might interfere with other high tech equipments. एग्जाम्पल हॉस्पिटल के अंदर आपकी जो एक्सरे मशीन होती है, वहाँ पर एक्सरेज होती है, इसलिए बोलते हैं ना भाई, जितने भी मेटल की चीज़ें दूर रखो, मोबाइल फोन्स को दूर रखो वगैरह वगैरह, ताकि वो इंटरफेयर ना करे हमारे हॉस्पिटल के अप्लायंसेस के साथ में। Senders and receivers are operated by laymen and radiation has to be low, okay।
तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट सेफ्टी हैजार्ड। इसीलिए आपको क्या पहनाते हैं उन लोग जो पहनते हैं, कुछ उन लोग एप्रन वगैरह पहनते हैं, आपको भी कुछ पहन, आपको तो नहीं पहनाते लेकिन उन लोग ज़रूर पहनते हैं ताकि उसका जो असर है वो उन पे ना हो। तो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वायरलेस है ये आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इट कम्स अंडर दी डिसएडवांटेजेस। ठीक है, ये बहुत कॉमन पॉइंट है, आगे चलते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हम लोग ने किए डिस्कस। और क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रॉपराइटी सोल्यूशन में इसको समझ नहीं पाए, अगर आप लोग समझ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो बाद में हम लोग देखेंगे इसको। सेकंड, थर्ड इज रेस्ट्रिक्शन, फोर्थ इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो 5 एडवांटेजेस, 4 डिसएडवांटेजेस। आई होप कि ये क्लियर है। ठीक है, coming to the next part, that is design goal. Even though this is 12:44, but still let me check whether we can cover it or not. Design goals are too much, but still we can start. देखते हैं, अगर 2-5 मिनट ज़्यादा भी होगा तो चलेगा। So design goals, while you are designing or the wireless network, or we can say wireless LAN, okay, so we need to consider these points. Starting with the global operation, wireless LAN products should sell in all countries. So national, international frequency regulation have to be considered. Because if you are preparing any device, any product, okay, and in which the wireless, wireless LAN technology have to be integrated, then what you have to think, अगर आपका ये प्रोडक्ट जो है ना, नॉट ओनली इन इंडिया, बिकॉज यू हैव टू थिंक वर्ल्ड वाइड, योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड इन ऑल द कंट्रीज। So according to the international rules and regulation and the frequency regulation, we have to consider, we have to integrate that wireless LAN into the product. Okay, भाई इसका मतलब ये है कि आपका जब प्रोडक्ट बाहर के कंट्री में जाएगा तो आपका प्रोडक्ट बैन ना हो जाए, वहाँ के फ्रिक्वेंसी रेगुलेशन को अपोज ना कर दे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप इन माइंड while designing while designing or while incorporating the wireless LAN into the product, you need to think that आपका जो ये प्रोडक्ट है वायरलेस लैन प्रोडक्ट, ये ग्लोबली ऑपरेट करे। दैट्स ऑल, दिस इज द फर्स्ट डिजाइन इशू, और वी कैन से डिजाइन गोल। लो पावर devices communicating via wireless LAN are typically also wireless devices running on battery power। क्या है आपका ये वायरलेस लैन डिवाइस है, लेकिन क्या हो रहा है, बैटरी पावर पे। तो इसका जो पावर, मतलब इसका जो कम्युनिकेटिंग पावर है वो काफ़ी लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कॉल करूँगा, ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेटिंग जो पावर रहेगा, जो यहाँ से कॉल यहाँ से पुशअप होगा, तो उसका पावर बहुत लो है। ठीक है, और फिर उसी के लिए क्या होता है, मैंने आपको अपने जीएसएम में भी बताया था कि हमारा जो नियरेस्ट हमारा बेस स्टेशन होते हैं, वो हमारी तरफ से हमारे लिए क्या करते हैं, कॉल कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर कभी मैं विदाउट अ बेस स्टेशन, विदाउट बीटीएस एंड ऑल दैट, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट किसी को फ़ोन लगाना चाहूँ, तो मेरा बैटरी का कंजम्पशन बहुत होगा। ठीक है, बिकॉज जो ट्रांसमिशन जो पावर रिक्वायर्ड है किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, तो दैट पावर इज टू मच। ओके, सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द बीटीएस और बेस स्टेशन वगैरह की हम लोग हेल्प लेते हैं। The LAN design should take this into account and implement special power saving modes and power management function। उसी चीज़ को माइंड में रख के आपको पहले स्टार्टिंग में 2000 की बैटरी आती थी, 2000 mAh बैटरी, 3000 mAh बैटरी, 2005 mAh बैटरी। फिर बोले कि भाई पावर कंजम्पशन किसी का ज़्यादा है तो चलो भाई ज़्यादा रखो, इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। ठीक है, या फिर अगर पावर अगर बैटरी अगर लो है, बैटरी अगर कम पावर की है, तो फॉर दैट यू कैन कीप सम पावर सेविंग मोड्स आल्सो। ठीक है, सो दैट आपकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग चले। ठीक है, so we have to consider this thing कि भाई whatever devices we are using for communicating via wireless LAN, obviously they are operating on the very low power, बैटरी पावर पे। बैटरी पावर का पावर जो है लो होता है, इसके लिए what you have to think, you have to think for it and you have to design your product in such condition। ठीक है, तो ताकि आप जब डिज़ाइन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो उस टाइम पे आप ये चीज़ को भी दिमाग में रखो कि आपको लो पावर पे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कंसिडर करना चाहिए वाइल डिज़ाइनिंग। दिस इज़ द डिज़ाइनिंग गोल। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड डिज़ाइन गोल while you are considering, while you are preparing or you are developing any wireless LAN product। okay, तो ये हमारा सेकेंड गोल है। थर्ड गोल, लाइसेंस फ्री ऑपरेशन। LAN operators do not want to apply for a special license to be able to use the product।
बट अगर वही चीज़ अगर वायरलेस लैन की है, अगर अगर आपकी वायर्ड है अगर चीज़ है, तो उसके लिए कोई आपको लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर वही चीज़ अगर आपको वायरलेस यूज़ करनी है, द इक्विपमेंट मस्ट ऑपरेट इन द लाइसेंस फ्री बैंड सच एज 2.4 गीगाहर्ट्ज़ आईएसएम बैंड। तो ये रेंज में आपको काम करना है। अगर उसके आप आगे पीछे जाते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए परचेज करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड डिज़ाइन गोल है, थर्ड कंसिडरेशन है व्हाइल यू आर डेवलपिंग, व्हाइल यू आर क्रिएटिंग एनी वायरलेस प्रोडक्ट, वायरलेस लैन प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये भी एकदम पॉइंट सिंपल है। कमिंग टू द फोर्थ वन, दैट इज रोबस्ट ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। कंपेयर टू देयर वाइड काउंटरपार्ट, वायरलेस लैन ऑपरेट अंडर डिफिकल्ट कंडीशन। आपको मैंने बताया कि कैसी भी कंडीशन, कैसी भी हार्ड कंडीशन आ सकती है, तो वो भी कंसिडर रख के, वो भी दिमाग में रख के हमको अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना। क्या क्या? इफ़ दे यूज़ रेडियो ट्रांसमिशन, मेनी अदर electrical devices can interfere with them, vacuum cleaner, hair dryers, then train engines, तो ऐसी एटमॉस्फेयर। Okay, so we need to think that your product may be working in the environment which is very heated environment, या which is very cold environment, या which is very movable environment। हो सकता है आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह यूज हो रहा है जहाँ पर मतलब स्मृति शॉप है। स्मृति शॉप, आई थिंक यू पीपल आर हैविंग अबाउट नो अबाउट द स्मृति शॉप, जहाँ पर वो होता है ना, लोहे को गर्म करते हैं, उसको बोलते हैं स्मृति शॉप, और उसको फिर मारते हैं, उसको शेप देते हैं। So maybe your product is working over there, so it should handle that much of heat। okay, या ऐसी जगह यूज हो रहा है एकदम डीप फ्रीज में लगाना है, आपके प्रोडक्ट को डीप फ्रीज में लगाना है, तो अकॉर्डिंगली यूर प्रोडक्ट कैन वर्क। ओके, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका प्रोडक्ट मूवेबल में, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन में लगा दिए, अब ट्रेन हमेशा मूव कर रही है, तो उसके हिसाब से उसको सिग्नल कैच करना, ट्रांसमिशन करना, रिसीविंग करना, ट्रांसमिट करना, रिसीव करना एंड ऑल दैट। So robust transmission technology, so wherever we are using this particular product, so it must be acceptable in all the environment। okay, under the difficult condition, under the difficult environment, it should operate। okay, coming to the next design goal, that is simplified spontaneous cooperation। to be useful in practice, wireless LAN should not require complicated setup routine, but should operate spontaneously after a power up। जैसे कि आपको हमने अभी हम लोग ने बोले कि आपके जो मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन को क्या चाहिए, आप गए अपने फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड था, उससे कुछ आपको डेटा लेना है, आपने जस्ट ऑन किया, क्या किया आपने, खाली फिंगरप्रिंट से ऑन किया, अपना मोबाइल डेटा ऑन किया, और जो कम्युनिकेट करना था कम्युनिकेट कर लिया। आपको एक मेल सेंड करना था, आपने मेल सेंड कर दिया। स्पॉन्टेनियस ऑपरेशन है, स्पॉन्टेनियस ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये कंसिडरेशन दिमाग में रख के बनाएंगे, तभी तो आपका मोबाइल फ़ोन रेडी हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को सोचना है कि इट इज़ ईजी टू यूज़। ओके, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत सारा सेटअप करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोलूँगा भाई मुझे एक मेल सेंड करना है, तो इन द सेम फॉर द सेम एनवायरनमेंट फॉर द सेम टास्क, इफ़ अगर मैं फिक्स नेटवर्क यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने घर पे जाऊँगा, जाके मैं अपना डेस्कटॉप ओपन करूँगा, ऑन करूँगा, ऑन करने के बाद में वो डेस्कटॉप ऑन होगा, ऑन होने के बाद में मैं अपना मेल ओपन करूँगा, नेटवर्क कनेक्ट करूँगा, अपना वाईफाई राउटर ऑन करके उससे कनेक्ट करूँगा, और कनेक्ट करने के बाद में फिर मैं जाके जो मेल है वो मेल सेंड करूँगा। ठीक है, ये जो डेटा मुझे भेजना था, वो फाइल भेजना था किसी को, मैं भेजूँगा। ठीक है, so that is the thing, that is the process which is required in order to use the infrastructure based network। इन द सेम वे अगर मेरे पास में वायरलेस लैन नेटवर्क है, वायरलेस लैन है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव spontaneous operation can be performed in this particular device। ऑन किया, फाइल सेलेक्ट किया, सेंड टू ईमेल, डन, और ईमेल एड्रेस डाला, सेंड किया, सेंड हो गया। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस ऑपरेशन। ओके, एंड इट कोऑपरेट विद अस आल्सो। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन ये है। Production and investment, a lot of money has already been invested into the wired LANs, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में मिड ऑफ 80s या 90s के अंदर जब आपका वायर्ड लैन बहुत चलते थे, उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारी कंपनी ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट ने अपना पैसा लगाया और अपने अपने अपना जो नेटवर्क है वो सेटअप किया है। ठीक है, तो इसके लिए लैन तो आपका अभी मतलब हो ही गया। नाउ अब now the things are getting converted into the wireless LAN, because we have very good, बोलते हैं ना अभी अपने कैंपस को क्या करना है, कैंपस को तो वाईफाई फ्री कैंपस ऐसा कुछ तो बोल रहे थे, वो करना है।
you will be anywhere in the college, so you will be connected to the internet. Okay, you can connect to the internet. आप वॉशरूम में हो, किसी क्लासरूम में हो, लैब में हो, लॉबी में हो, कैंटीन में हो. ओके, सो तो ये माइंडसेट रख के जो है ना, तो आगे आगे काम कर रहे हैं. तो जो भी द न्यू वायरलेस लैन शुड प्रोटेक्ट दिस इन्वेस्टमेंट बाय बीइंग इन इंटरऑपरेबल विद द एग्जिस्टिंग नेटवर्क. तो अभी वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड इन द वाइड लैन, तो वो उसको हम लोग ऐसे तो नहीं जाने दे सकते. ठीक है, तो उसको आपको यूज करके, उसको आपको एज अ कैपिटल यूज करके आपको अपना प्रोजेक्ट उसके अंदर इमर्ज करना है. आप उसके अंदर वो कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं. तो एक सिंपल उसमें से मैंने पॉइंट निकाल के आपको बताया हूँ, बस ये इसके अंदर. नेक्स्ट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो आपको मैंने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में पहले ही पढ़े. While using the wireless LAN, we have to be very safe to operate, especially regarding the low radiation if used. Okay, for example, in hospital we have to be very careful while we are using the X-ray machine or while we are going for MRI and all that. Okay, तो वो सारी चीज़ों उसका बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना पड़े. उस आगे आगे किसके अंदर भी वही पॉइंट. Transparency for application. So whichever application we are using for the wireless LAN which run over the wireless LAN, the only difference being higher delay and lower bandwidth. ये प्रॉब्लम आ सकता है, तो we have to think for that also कि जहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को जो कि हमारे वायरलेस लैन यानी वायरलेस एनवायरनमेंट में काम करने वाला है, तो हमको हायर डिले ना हो और लोअर बैंडविड्थ ना मिले. ठीक है, इसका हम लोग को उल्टा मिलना चाहिए. ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी हो हमारे एप्लीकेशन के लिए, सो दैट वी कैन गेट द हायर बैंडविड्थ एंड लोअर द डिले. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है इसके डिजाइन गोल. वाइल यू आर कंसिडरिंग, सॉरी, वाइल यू आर क्रिएटिंग एनी वायरलेस लैन प्रोडक्ट, then you need to mention, you need to think of all the design goals. Okay, so that's all. I think we have done enough. Okay, so what we have done, we have done advantages, we have done disadvantages and design goals. Okay, hope you all understood. Coming back, the next topic will be covered in the next session. Okay, मुबश्शिर खान सर के पास जा रही है रिकॉर्डिंग.